Very good afternoon, everyone. Students, welcome in the math class. Students, today we are going to revise the topic shapes. We already have done this topic earlier also. हमने पहले draw and color का concept किया था shapes के साथ. We learned how to draw the shapes. Shapes को draw करना सीखा था and we have done coloring part also. Now we have to learn to recognize the shape. अब हमें शेप्स दी होंगी, वी हैव टू रिकॉग्नाइज दो शेप. अभी हमने उनको पहचानना है एंड वी हैव टू टेल द नेम ऑफ दो शेप. So everyone, for this activity you all have to participate in chat box. Okay, you have to participate through chat box. Chat box से through आपने participate करना है. You have to write down the, you have to recognize the shapes. recognize करना है और उन shapes के name chat box पे लिखने हैं. Okay, let's start. So students, now tell me, you can see this object at your home. घर पे आप देखते हो, मम्मा usually use this object, ना use करते हैं ना. So can you tell me where we keep this object at home? कहाँ पे रखते हैं इस object को? You people are not listening my question ना, पहले ही आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया. Okay, otherwise your answer is right. Yes, it's hanger. ये hanger है. We usually keep this hanger in the almirah. almirah में रखते हैं and the shape of this hanger is triangle. Yes, it's right. It's triangle. इसकी shape है वो triangle shape है. ठीक, ये देखो inside this triangle के ये अंदर जो white portion नजर आ रहा है, this is shape of triangle and triangle has 3 sides. कितनी sides होती हैं triangle की? 3 sides होती हैं. Okay, okay, now and here are the spellings of triangle. ये triangle के spelling है. Let's speak with me. T-R-I, try. Speak. A-N-G-L-E, angle. Triangle. ठीक, T-R-I, try. A-N-G-L-E, angle. Triangle. Triangle. So you have to learn the spellings. आपने इन shapes के spellings भी learn करने हैं. And other picture. You can decorate your house with the help of this picture. ये क्या है? Picture का name क्या है? What is it? आप तो पहले ही शेप लिखना शुरू कर देते हो. What is the name? Yes, this is photo frame. Yes, this is photo frame. And what is the shape of this photo frame? Yes, it's square. क्यों square है ये? Because all sides are equal. ठीक है, अगर आप इसकी 4 sides देखोगे, इसकी 4 sides हैं. This is 1, 2, 3 and 4. और 4 की 4 sides की जो length है, ठीक है, जो उनकी लंबाई है वो इक्वल है. कोई ऐसे बिग स्मॉल नहीं लग रही है, सारी इक्वल है. आपने ये माइंड में रखना है. जो स्क्वायर होता है उसकी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं. एंड लेट्स लर्न द स्पेलिंग ऑफ स्क्वायर. S-Q-U-A-R-E, square. S-Q-U-A-R-E, square. So you have to learn the spellings also. ठीक है, आपने spellings भी learn करने हैं. Let's move on the next one. So can you tell me what is the shape of this article? Can you tell me what is the article? Yes, this is wheel. Right, right. It's a wheel. And what is the shape of wheel? Can you tell me? Yes, it's circle. Good, good. It's circle. And let's learn the spellings of circle. C-I-R, cir, C-L-E, circle. C-I-R-C-L-E, circle. Repeat it once again. C-I-R-T-L-E, circle. So next thing is, can you identify what is it? क्या है ये? कौन सी चीज है ये? मैसेज. यस, मैसेज करते हैं, बट इसमें हम लेटर डालते हैं. इट्स नॉट लेटर पैड, इट्स एनवेल्प. दिस इज एनवेल्प. ठीक है, जिसमें हम लेटर को पोस्ट करते हैं. तो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस एनवेल्प? एनवेल्प की शेप क्या है? यस, वेरी गुड, इट्स रेक्टेंगल.
ये रेक्टेंगल है, इसकी शेप रेक्टेंगल है. लेट्स लर्न द स्पेलिंग ऑफ रेक्टेंगल ऑल्सो. REC रेक, REC रेक्टेंगल, TAN टैंग, GLE गर्ल, रेक्टेंगल. ठीक है. आपने जब भी स्पेलिंग्स लर्न करने हैं आप ट्राई करो, जब लॉन्ग स्पेलिंग्स होते हैं उनको थोड़ा सा ब्रेक करके लर्न करते हैं. ठीक है. जैसे रेक्टेंगल के स्पेलिंग थोड़े से बिग हैं, लॉन्ग हैं, तो आपने इसको तोड़ के लर्न करना है, ब्रेक कर करके लर्न करना है. REC रेक, TAN टैंग, GLE गर्ल, रेक्टेंगल. ओके. कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज इट? क्या है ये? यू कैन सी इन द स्काई ऑल्सो. स्काई में देखते हो? यस, इट्स रेनबो. ये है रेनबो ना. रेनबो आता है ना जब बारिश होती है, फिर एकदम से सन भी निकल आता है, फिर हमें रेनबो स्काई में नजर आता है. व्हाट इज द शेप ऑफ रेनबो? कैसे लगता है रेनबो? रेनबो हमें सेमी सर्कल की तरह लगता है. क्या कैसे लगता है? सेमी सर्कल की तरह. ठीक है. इट्स द शेप ऑफ रेनबो इज सेमी सर्कल. Okay, I hope you have learned all these shapes. Have you learned these shapes? Thank you for this. But let's revise the shapes. I am going to show you the shapes. Okay, so you have to recognize those shape and write down the answer in the chat box also. I have a earring. ठीक है. ये देखो मैम ने एक earring पकड़े हैं. What is the shape of this earring? इस इयरिंग की शेप क्या है? वेरी गुड तनवीर कौर, गौरी, प्रियांश, यस हरगुन, मनतेग, वेरी गुड, गुरसिफत, सहमत. Okay, very good. I have received so many responses that the shape of this earring is triangle. Very good. Triangle. Can you identify what is the shape of this bangle? Circle. Very good. Priyansh, Rajveer, Anraj, Himanshi, Kavesh, Hargun, Janvi, Gauri. Very good. It's circular in shape. ठीक है. Circle है इस shape. And what is the shape of this coaster? It is also circular in shape. ये भी circle ही है. इसकी shape भी circle है. Yes, good. Can you tell me what is the shape of this clock? Alarm clock की shape क्या है? Is it square or rectangle? Yes, it's square in shape. ये square है shape में because all sides of this clock is equal. सारी sides इस clock की equal हैं. ठीक है. सारी equal है, सारी sides इसकी equal हैं. And how many sides are there in square? कितनी sides होती हैं square की? Can you tell me? Yes, 4 sides. Let's count. Count करते हैं 1, 2, 3 and 4. ओके, सबरीन के पास भी सेम ऐसे ही कलर का क्लॉक है, येलो कलर का है ना. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ दिस हैंगर. राइट डाउन इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड तनवीर, रोनित, यस ब्रह्मलीन, यस. दिस इज ट्राइंगल इन शेप. ये ट्राइंगल है. वन साइड, सेकंड साइड एंड दिस इज थर्ड साइड. 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की. 1, 2 एंड 3. 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की. ओके, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? अभी मैम ने आपको पहले भी पिक्चर दिखाई थी. दिस इज एन एनवेल. यस, दिस इज एन एनवेल. एंड व्हाट इज द शेप ऑफ एनवेल? क्या होती है? क्या है इस शेप एनवेल की शेप? यस, इट्स रेक्टेंगल इन शेप. ये रेक्टेंगल है, शेप की रेक्टेंगल है. एंड कैन यू टेल मी सम टिकट्स आर आल्सो प्लेस्ड. कुछ टिकट्स प्लेस की हुई है ना यहाँ पे. इन टिकट्स की क्या है शेप? इन टिकट्स की शेप क्या है? क्या लग रही है आपको? यस, दीज आर स्क्वायर इन शेप. ये टिकट्स जो हैं ये स्क्वायर शेप की हैं टिकट्स. ओके, गुड. कैन यू टेल मी द शेप ऑफ दिस टेप रोलर?
टेप का रोल है मैम के हैंड में और उसकी शेप क्या है? यस, इट्स नॉट रेक्टेंगुलर, इट इज सर्कल इन शेप. यस, इट इज सर्कुलर इन शेप. शेप ऑफ दिस टेप रोल इज सर्कल. सर्कल है, इसकी जो शेप है सर्कल है. एंड कैन यू टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ दिस फिगर? दिस इज अ पेन होल्डर. ये पेन होल्डर है, देखो ऐसे है पेन होल्डर. पर इसको जब हम साइड से देखते हैं ना पेन होल्डर को, तो जैसे नीचे प्लेस किया हुआ है, तो इसकी शेप क्या बन जाती है? यस, इट्स ट्राइंगल. ट्राइंगल शेप बन जाती है, क्योंकि और ट्राइंगल की कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स. लेट्स काउंट 1 2 एंड 3. ठीक. ओके, नाउ लेट्स सी what is the shape of this pencil box? Yes, it's rectangle. Rectangle. जो pencil box का ये top है वो rectangle है. If we can see this, the shape of this scale is rectangle. इसकी shape क्या है? Rectangle है. Okay. Now, can you tell me what is the shape of this laptop screen? इस लैपटॉप की स्क्रीन की शेप क्या है? No, it's not square. No, it's rectangle. It's rectangle in shape. Rectangle है इसकी शेप. इसकी शेप क्या है? Rectangle. Okay, it's rectangle. Okay, students, I have one table calendar. मैम के पास ये टेबल कैलेंडर है और टेबल कैलेंडर की शेप क्या है? Yes, it's also rectangle. इसकी शेप भी rectangle है. And if we see from the side, अगर हम इसको साइड से देखें, अब देखें, अब इसकी शेप क्या बन गई है? अब इसकी शेप क्या बनी? Yes, triangle. Very good. So beta, we can see that there are so many things. बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी शेप्स होती हैं. हर चीज कोई ना कोई शेप में होती है. ठीक है. Can you tell me the example for triangle shape? आप अपने अराउंड में कौन सी चीजें देख पा रहे हो जो ट्राइंगल इन शेप हैं, जहाँ आपको पता है कि अच्छा ये शेप ट्राइंगल की शेप में होती है? चाहे वो ईटेबल हो सकती है, चाहे वो प्लेइंग थिंग्स हो सकती हैं. राइट डाउन द आंसर इन द चैट बॉक्स. फोटो फ्रेम इज ट्राइंगल इन शेप. बेटा ट्राइंगल शेप में चपाती, नो, चपाती इज राउंड इन शेप. I'm telling you about I'm asking this question for triangle shape only. ठीक है. ट्राइंगल शेप की आप मुझे एग्जांपल बताओ कि कौन कौन सी ऐसी शेप होती है जो ट्राइंगल शेप में होती है, जो आपके आसपास चीजें हैं. अच्छा, इयरिंग वो तो मैम ने दिखा दिया था आपको, हैंगर भी दिखा दिया था. आयन, यस, वेरी गुड. आयन. हिल, वेरी गुड. पर, yes, birthday cap. Very good, Mantek. Priyansh, very good example. Sharpener. Sharpener is in triangle shape. Hut is also, yes. Shuttle. Okay. Yes, good. Hut. Eraser also. Yes, some erasers are also in triangle shape. And one thing more, pizza slice. पिज्जा खाते हो ना, पिज्जा का एक पीस जब आप उठाते हो फिर ट्राइंगल इन शेप होता है ना. यस, आइस कोन भी ट्राइंगल इन शेप होता है. पेन लिड. के, बर्थडे कैप. ओके, कैन यू गिव मी द एग्जांपल फॉर सर्कल शेप? सर्कल शेप कौन कौन से ऑब्जेक्ट की होती है और कौन कौन से आपको पता है? बैंगल, वेरी गुड. पी, वेरी गुड. क्लॉक, चपाती, टेबल. टेबल टॉप रेक्टेंगुलर भी शेप में हो सकता है और स्क्वायर भी शेप में हो सकता है. ठीक है. स्टूल, ये भी वेरिफिकेशन हो सकती है ना, डिफ्रेंशिएशन हो सकती है. वो टॉप जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है. ओके. बॉल, लिड, बैंगल.
Very good. Well done. Well done. Okay. Now stop giving the answer. Face, mirror. Okay. All right. Burger, chapati, clock. Okay. Okay. Well done, students. So let's see the shapes. अभी हम shapes देखते हैं. So first of all, today we will start worksheet 17. ठीक है. आज हम worksheet 17 start करेंगे. And ma'am will share one PDF for this, ना? Ma'am PDF एक share करेंगे. Ma'am has drawn the shapes in that PDF. इस PDF में ये shapes draw की हुई हैं. So you people will also take help of your parents. आपके parents आपके लिए ये shapes draw कर देंगे and you will complete that form. Okay? And simply you tell me what is the shape of this TV, or we can say that desktop. इसकी shape क्या है? What is the shape of this article? Write down in the chat. Yes, it's a rectangle. R-E-C, T-A-N-G-L-E, rectangle. This is the shape of rectangle. What is the shape of this clock? Write down in the chat box. What is the shape of this clock? I have also shown you. Yes, it's square. And what is the spelling of square? S-Q-U-A-R-E, square. S-Q-U-A-R-E, square. What is the shape of this set? This set is in geometry. Okay? जब आप थोड़े से बड़े हो जाओगे ना और बड़ी बड़ी 6th क्लास में 7th क्लास में जाओगे तो यू हैव टू परचेज वन ज्योमेट्री सेट ना. ज्योमेट्री सेट आपको परचेज करना पड़ेगा. उस ज्योमेट्री सेट में ये सेट होता है. ठीक है. जब आप शेप्स और बड़े होके और मैथ्स की और डिफरेंट शेप्स होती हैं वो तब आप यूज करते हो इसको. स्क्वायर सेट्स इसको. ठीक है. एंड व्हाट इज द शेप ऑफ दिस स्क्वायर सेट? इट्स ट्रायंगल. वेरी गुड. It's triangle. T-R-I-A-N-G-L-E, triangle. And this protector, ये जब हम थोड़े और बड़े हो जाओगे ना फिर आप एंगल्स सीखोगे. ठीक है. वो डी की हेल्प से आप एंगल बनाओगे. इसे डी भी बोलते हैं. तो व्हाट इज द शेप ऑफ दिस? दिस सेमी सर्कल. दिस सेमी सर्कल. S-E-M-I, semi, C-I-R-C-L-E, circle, semicircle. And what is the shape of this CD? ये CD बनी हुई है. CD की shape क्या है? Circle. This is circle. C-I-R-C-L-E, circle. Okay. So students, you will complete this work later on. आप ये work, shapes का work आप बाद में complete करोगे. Just we have to discuss it. First of all, you have to learn the spellings of these shapes. ठीक है. इन shapes के spellings learn करोगे तभी ये वाला work आप कर पाओगे. Okay. Let's move on towards the mental ability. Okay. अभी हम mental ability discuss करेंगे. This you will do with ma'am. ठीक है. मेंटल एबिलिटी मैम के साथ साथ करोगे आप. So first of all, put the heading mental ability. I am going to write down the heading mental ability या mental maths, कुछ भी बोल सकते हैं इसको. First one is 5 plus 4 is equal to dash. This is very simple. ये तो बहुत simple है. 5 और प्लस को 5 को प्लस करना है 4 में. मीन्स 5 और 4 को आपने प्लस करना है. तो आपको पता है एडिशन कैसे करते हैं. आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हो. 5 फिंगर्स ओपन की फिर 4 फिंगर्स ओपन की. ठीक है. सारी फिंगर्स को काउंट कर दिया. ऐसे भी कर सकते हो. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो. अपर नंबर इन माइंड. 5 को माइंड में रखा. ओपन 4 फिंगर्स एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड. माइंड में क्या था? 5 के बाद 6, 7, 8, 9, and 9 is the answer. So you have to write down 9 here.
ठीक, इट्स वेरी इजी। ये तो सिंपल पता ही है कि प्लस करना है, और प्लस का वे भी आपको आता है कि कैसे करना है प्लस। नेक्स्ट इज 6 माइनस डैश इज इक्वल टू। अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि 6 नंबर है हमारे पास, 6 नंबर में हम कौन सा नंबर माइनस करेंगे कि उसका आंसर 4 आ जाए, है ना। इसके लिए मैम आपको एक वे बताने लगे हैं। आपने जब भी ऐसा कोई आए एग्जाम, ठीक है, कि नंबर यहाँ पे कोई भी नंबर हो, उसमें हमने एक नंबर माइनस करना है और वो नंबर हमें पता नहीं है, बट हमें उसका आंसर पता है, तो आपने क्या करना है, उस आंसर को माइंड में रखना है। इस आंसर को आपने माइंड में रख लेना है, मीन्स 4 को आपने माइंड में रखा, और 6 तक हमने अपनी फिंगर्स ओपन करनी। 4 को माइंड में रखा, 4 के बाद 5 6, कितनी फिंगर्स होगी, 2, मीन्स जो 2 नंबर है हमने वहां ये लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे हम ये लिख देंगे, अगर हम 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो इसका हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग। अगर हम 6 फिंगर ओपन करेंगे, ठीक है, अगर 2 फिंगर्स माइनस कर देंगे, देखो हमारे पास कितनी फिंगर्स हुई, पूरी हुई ना, तो दैट मीन्स हमारा आंसर ये राइट है। नेक्स्ट वन इज हाउ मैनी sides are there in a triangle? So, how many sides are there in a triangle? Yes, right answer is 3. It's your wish कि आपने 3 ऐसे लिखना है, जहां आप 3 ऐसे भी लिख सकते, THR 3, ठीक है, ये आपकी विश है, आपने 3 कैसे लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज a semicircle has dash sides. सेमी सर्कल की साइड्स होती हैं? यस, टेल मी, कैन यू टेल मी, आर दे सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल हैज साइड्स? राइट डाउन इन द chat box. Yes, no, very good. सेमी सर्कल हैज नो साइड्स, को हम बोलेंगे 0 साइड्स। ठीक, 0, हम 0 को ऐसे सिंपली 0 लिख देंगे, जहां हम 0 के स्पेलिंग्स भी लिख सकते हैं, ZERO 0। ये आपकी विश है, आपने कैसे लिखना है, ऐसे सिंपल 0 लगाना है कि उसके स्पेलिंग्स लिख। नेक्स्ट वन इज 20 माइनस 0 इक्वल टू डैश। अब हमारे पास 20 है, 20 में हमने 0 माइनस करनी है। 0 का मीन्स, 0 मीन्स नथिंग, कुछ भी माइनस नहीं करना है। ठीक, तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 का 20 आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी। ठीक है, जब हमारे पास कोई भी नंबर है उसमें हमने 0 को माइनस करना है, जब 0 को प्लस करना है, आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, वही वाला नंबर उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर उस नंबर में हमने 0 प्लस या माइनस करनी, तो सेम वही वाला नंबर का आंसर बन जाएगा। ठीक, I hope you have done this mental ability. Have you done this? Write down in the chat box that you have done. The message in the chat box that you all have done. Write down in the, yeah, okay, Kashish have done. Okay, very well done. Very well. So let's do the next one. Next one again, we have the recapitulation of sums. Okay, अब हम sums की दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे।
First of all, you write down first sum, write down in the pattern ones, tens, hundred, then leave the place for carry over or borrow. फिर हमने उसके नीचे डिजिट लिखने हैं. इट इज 347 में हमने क्या करना है, माइनस करना है. किसको माइनस करना है, 129 को माइनस करना है. तो मैम आई थिंक यू आर अनम्यूट मैम, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. So beta, in minus you have to check the sign first. ठीक है, सबसे पहले आपने साइन. okay ma'am, I have okay, no problem बेटे, if you haven't done, अगर आपका जो रह गया है no problem, मैम will share the PDF जब शेयर करेंगे आप तब अपना कंप्लीट कर लेना. ओके, अभी आप मैम के साथ ये वाला सम सॉल्व करो. ओके, इट डजंट मीन कि जो मैम क्लास में करवा रहे हैं तो आप साथ साथ में ही करोगे. अगर आप थोड़ा सा पीछे भी रह जाते हो नो प्रॉब्लम, मैम जब आपके साथ PDF शेयर करते हैं आप तब आप वाला वर्क कर सकते हो. पुट योर कॉन्सेंट्रेशन ऑन लर्निंग पार्ट. ठीक है, ओके. तो वी हैव टू डू माइनस के सम्स जब करने हैं तो आपने याद रखना है कि आपने लोअर नंबर को माइंड में रखना है और अपर नंबर तक काउंट करना. अब अगर हम देखें लोअर नंबर 9 है, अपर नंबर 7 है, मींस 7 9 से छोटा है. तो जो स्मॉल नंबर है वो तो अपने आप से माइनस नहीं ना कर सकता. फिर क्या करेगा, ये पहले ही इससे हेल्प ले लेगा. किससे हेल्प लेगा, 4 से हेल्प लेगा. और 7 क्या बन जाएगा, 17. और 4 क्या बन जाएगा, इससे 1 लेस हो गया ना. ठीक है, और नंबर क्या बन जाएगा, 3. ठीक है, हमने इसका 4 का रिवर्स करना है कि 4 पर क्या आता है, कौन सा नंबर आता है, 3. तो नाउ वी हैव टू सॉल्व इट. अब हमने इसको सॉल्व करना है. 9 के बाद हमने 9 को माइंड में रखना है और अपर नंबर 17 तक हमने फिंगर्स काउंट करनी है. 9 के बाद क्या आता है, 10 11 12 13 14 15 16 17. कितनी फिंगर्स होगी हमारी, 8. 8 यहाँ पे लिख देना है. नेक्स्ट के बाद 3 तक काउंट करना है. 2 के बाद किया हमने काउंट 3, आंसर आया 1. ओके, नाउ अगेन 1 के बाद हमने कहाँ तक काउंट करना है, 3 तक काउंट करना है. 1 के बाद 2 3, कितनी फिंगर्स होगी, आंसर इज 118. 118 is the answer. Okay, let's write down the next sum. 537 में हमने 149 नंबर को प्लस करना है. ओके, सो ऑल ऑफ यू प्लस सम में क्या करना है, अपर नंबर को माइंड में रखना है और लोअर नंबर को फिंगर्स में रखना है. तो जल्दी से वंस प्लेस में 7 और 9 को सॉल्व करके क्या आंसर आया, कीप 7 इन योर माइंड एंड 9 ऑन योर फिंगर्स एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड. माइंड में क्या रखा, 7. 7 के बाद 9 फिंगर्स काउंट कर लो. 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 का हमने 6 नंबर है वो यहाँ पे प्लेस कर देना है और जो 1 है वो कैरी ओवर पे चला जाएगा. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक, सो कीप 1 इन योर माइंड. 1 को माइंड में रखा और 3 फिंगर्स ओपन कर एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम माइंड. माइंड में क्या रखा, 1. 1 के बाद 2 3 4. अब ये 4 आ गया. 4 को अब हमने माइंड में रखना है और ये वाले 4 ने ओपन कर दी फिंगर्स. और के बाद 5 6 7 8. आंसर क्या आएगा यहाँ पे, 8. अगेन वी हैव टू सॉल्व दिस नंबर. 5 in mind, open 1 finger and start counting from mind. 5 के बाद क्या आएगा, 6. आंसर आएगा यहाँ पे 686. Okay, so students, next we have to do more 2 sums. हम और करेंगे. If meeting will be over ना, you will complete those sums. ठीक है, अगर मीटिंग ओवर हो जाएगी तो आपने वो सम्स अपने आप सॉल्व कर लेने हैं.
और जब मैम पीडीएफ आपके साथ शेयर करेंगे तब आपने अपने आंसर्स उसके साथ मैच कर लेना है। ओके, नेक्स्ट सम इज 439। फिर 439 में 439 ही हमने प्लस करना है। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा अब आपको, अपर नंबर इन 9, 9 को माइंड में रखा और 9 फिंगर्स ओपन कर दी। क्या आंसर आया? बी फास्ट, राइट डाउन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। हरी अप, हरी अप, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। Okay, you have given the answer 878, but tell me what is the calculation of these two numbers? Yes, it's 18. Yes, 18 आया। 9 को माइंड में रखा, 9 फिंगर ओपन की, 18 का हमने 8 यहाँ पे प्लेस कर देना है और 1 हमारा कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। अब तीनों नंबर्स को प्लस करके कितना आएगा? 1 को, 3 को, फिर 3 को। राइट डाउन आंसर इन द चैट बॉक्स। यस, इट्स 7, 7 आ जाएगा। गुड जानवी। यस, नेक्स्ट 100 प्लेस पे अब दोनों डिजिट्स को हम प्लस करेंगे। व्हाट इज द आंसर? Yes, it's 8. Answer is 878. 878 is the answer. So next sum is 965. इसे हमने माइनस करना है, 718 नंबर को माइनस करना है। एंड व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? लेट्स सॉल्व। 8 को माइंड में रखा और हमने 5 तक काउंट करना है। इट इज नॉट